Assalamu alaikum. Today the topic we are going to cover is about the cost estimation and budgeting. So first of all, what we have to do is connect it with our previous lectures, which we discuss about the project thing. So because as I told you, that project is a unique identity which has been specified with the task as well as cost and the time constraint. So these are the endorsed things which are related to your project. So in this cost estimation and budgeting, definitely we are just jumping into the project and we have to plan something. Plan for what? Like if we are doing something, so it means we need some material or some equipment to complete our project. What would be the cost of that material? What would be the cost of that human resource? So basically in our cost estimation, we are analyzing how much cost will be incurred in order to complete the project. ठीक है. That is our first phase of this topic or this chapter. The second phase is all about the budgeting is about the allocation of resources. So what we have to do here is, firstly we have to tell you about the how much cost will incur to complete that project. That is in the form of our proposal, and then we present that proposal to the upper management or the organization who is handling that project, and we ask them for the budget thing. For example, if I am doing a project, is like I am telling you the cost in maybe in a million forms. So if the project is cost like 100 million, so I have to tell my organization, my parent organization, on which that project is going to be done. So I have to told them that what that 100 million means. So I just tell them that 50 million 50 million is for the land or the equipment or the materials, and 20 million is for the human resource, and 30 million for the risk, or maybe for other supporting activities. And when they analyze it up, yeah, that the cost estimated is really much up to the mark, and then later on they assign the budget accordingly. ठीक है. अब these two terms are already known to you. My work here is just to connect it with the project. Because why there is a need for cost estimation? Because अगर cost estimation नहीं होती तो we are not sure कि हमारी कितनी cost incur होगी. So अगर हम estimation हमारी गलत हो जाती है तो वो सारा burden मैनेजर के ऊपर, प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर पड़ेगा. सो इट्स मच बेटर कि व्हेन यू आर प्लानिंग समथिंग, सो यू हैव टू फुलफिल all the requirements and then start that work, no. That would be more appropriate for you. एंड नॉर्मली जो आपके पास कॉस्ट एस्टिमेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है इज आफ्टर द स्कोप बेस लाइन, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं स्कोप मैनेजमेंट में. सो हे व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट द प्रोजेक्ट एंड देन द कॉस्ट थिंग, and what is the middle thing lie between is the basically the scope. And in scope we discuss about the deliverables, and in the deliverables the further thing we have is the work breakdown structures. So it can be like these are the work breakdown structures which the activity has to be performed by the human resource, and later on हमने उनको उसके लिए पे कर रहे हैं. So there मतलब it's not कि हमारे पास overall everything is certain and we know about what is going to be happen in 1 year or 1.5 year. But still we prepare ourselves कि हमने एक estimation देनी है और उसके accordingly फिर हमें budget allocate होगा. ठीक है. So what we are going to learn, this is basically the introduction of that cost estimation thing. ठीक है. So when I'm going to discuss about the budgeting thing, I will give you the introduction specific to it. ठीक है. So what we are going to do here is we discuss about the common project cost, different project forms, then we have forms or project cost, and cost estimation के जो कॉमन फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं उनको देख लेंगे. देन दे डिस्कस अबाउट ओके. सो देयर इज नो नीड टू गो फॉर दिस थिंग, जस्ट इट्स जस्ट चेकलिस्ट थिंग ना, कि कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं. सो विद द पेस्ट ऑफ टाइम यू विल एनालाइज इट अप, क्योंकि एंड में जब मैं इसको समराइज करूँगी विल नो अबाउट इट कि ओके देन दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू इट.
So this is basically the project cost management. Here we have is if we are going to talk about the estimated cost, and out of that thing we have that determined budget, और उसके बाद फिर ये चीज़ें हम मेंशन कर देंगे. सो वी स्टार्ट विद द इनपुट्स ऑफ इट, एंड एज आई टोल्ड यू अबाउट कि इसमें जो ज़्यादा इनपुट मैटर कर रहा है वो क्या है, स्कोप बेसलाइन. Scope baseline, scope statement, these are basically which give you what would be the nature of your project, what things are being going to be incurred here, what are the deliverables of your project, and you have to go for in order to achieve those deliverables you cut them into manageable parts, which is basically excuse me, which are basically known as work breakdown structures. Okay. And then the second input in our cost estimation is the project schedule. Okay, when I talk about the project schedule, it means the timing thing. In how many months or in the weeks I have to complete my project. So that would be my concern now. No? Acha, what I am going to discuss here is I gave you a question in the midterm exam and I asked you about the output of that thing. No? And students discuss about the things which are in the gray zone. No, they have to discuss about these outputs. Na? Almost like in 160 students, only um, two or three students perform accordingly. This is the output. So I'm going to tell you about these are the inputs. As you can see here is create work breakdown structures, develop schedule, develop human resource plan, identify risk, enterprise organization. And the output for project cost are project documents, plan procurement, and identify risk. ठीक है. सो ये चीज़ अपने एग्जाम्स में याद रखनी है आपने इसके. द राइट हैंड साइड ऑफ द पिक्चर इज ऑल अबाउट for the inputs, and there we have the outputs. So this gray zone is basically discussing my topic. मतलब why I am analyzing this topic, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ये हमें प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में हेल्प करेगा, ये हमें प्लान प्रोक्योरमेंट में हेल्प करेगा, और आइडेंटिफाई रिस्क में. Okay, so as I told you about develop schedules about the time. So जैसे मैंने शुरू में बताया कि cost estimation हम दो चीज़ों की most probably करते हैं. One is the material and other thing is the human resource. So अगर मैं इस चीज़ को simplify कर दूँ कि अगर हमारे पास tangible thing है and that is intangible thing can be in the form of human resource. So who are the personnel we required, what would be their wages, how much, मतलब उनके साथ हमारे पास contractual agreement किस तरह का है, ये सारी डाटा हमें कहाँ से मिलेगा, ये सारा डाटा हमें मिलेगा ह्यूमन रिसोर्स प्लान से. ठीक है. एंड देन द नेक्स्ट इनपुट इज आइडेंटिफाई रिस्क. आइडेंटिफाई रिस्क में जो हमने टॉपिक पढ़ा था रिस्क मैनेजमेंट में, उसमें हमने बताया था मिटिगेशन स्ट्रैटेजी के कुछ रिस्क हैं जिनको हमने जिनके साथ हमने डील करना है, और हम ये चीज़ माइंड में रखते हैं कि अगर प्रोजेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी आउटपुट है, बट देयर इज रिस्क इन्वॉल्व इन इट. तो अगर मैं प्रीवियस के साथ इसको लिंक अप करूं तो मैंने आपको क्या कहा था, जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो हमारा रिस्क मैक्सिमम होता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी कॉस्ट ज़्यादा होती जाती है और रिस्क जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मिनिमाइज होता जाता है. सो अगेन जस्ट बिकॉज के मैंने इनकर क्यों नहीं की शुरू में कॉस्ट, क्योंकि रिस्क ज़्यादा था, वो सारी की सारी अमाउंट जो है वो वेस्ट हो जाएगी. If you are remember that graph, so that graph would be like this. It's like here's the risk and here would be the cost at that point ना, इस तरह से हमने डिस्कस किया था. So just because we discussing about this cost thing, so risk is also the input in that thing. So मैंने आपको बताया था mitigation strategies में हम reserves रखते हैं, हम कुछ uncertainty के लिए कुछ savings रखते हैं. ठीक है. So this would be the thing. Next one we have is the enterprise and the organizations. Definitely as we are working in that environment, there may be external environmental factors involved in it, uh, which is basically internal as well as the external. उसको भी देखना है हमने और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने कॉस्ट डिफाइन करनी है. देन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स कि देखें, जैसे ऑलरेडी इक्विपमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ी हैं एंड दे आर ऑफ नॉट यूज, सो आई कैन ईजिली यूज देम ना. बट इफ ऑर्गेनाइजेशन के पास इस तरह का कोई एसेट नहीं है तो डेफिनेटली उस चीज़ को मुझे
कॉस्ट एस्टिमेशन में ऐड ऑन करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंगली फिर हमें बजट मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द इनपुट फॉर योर कॉस्ट एस्टिमेशन एंड द आउटपुट फॉर द कॉस्ट एस्टिमेशंस आर डेफिनेटली दैट वुड बी द वन थिंग ना, बजट। एंड बजट के अलावा हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लान प्रोक्योरमेंट्स एंड आइडेंटिफाई रिस्क है। अच्छा, द क्वेश्चन here we can see about it is 11.2 is in the identify risk is input as well as the output. Why I say it about the output, because यहाँ पे हमने estimate की cost की कि ABC risk exist करता है, ठीक है, और हमने उसको estimate कर दिया और budget भी allocate हो गया उसके लिए। सो इन दैट पॉइंट हम फिर उसमें अपडेट कर देंगे कि जो यहाँ पे रिस्क हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है उसको हमने कोप अप करने के लिए हमें इतनी इतनी अमाउंट इनकर करनी पड़ेगी। सो व्हाट आई हैव टू डू एयर इज कि अब हमारे पास अगर मैं इस चीज़ को प्लान आउट करूँ तो इज़ लाइक दिस इज द ओके व्हाट हैपेंस टू इट। So if it says about this is material, which I told you about the tangible thing, and this is the human resource thing, and the third thing is would be legal, political, or whatever the issues are. These are the things. So basically, cost estimation में क्या करना है? We just have to put dollars in front of it. How much dollar has been required to complete that activity? For example, in the context of my material thing, I just say it requires $500 million, that ठीक है, that is my estimation. But in the budget thing, they definitely budget के लिए अपने inputs होंगे as you so यहाँ पे वो हमें 500 कर सकते हैं या वो कहते हैं कि 550, पर नॉर्मली जितने आप बजट कॉस्ट प्रपोज करते हैं नॉर्मली बजट भी उसी के अकॉर्डिंगली आपको असाइन होता है। ठीक है, okay, so cost management has been defined to encompass data collection, cost accounting, and cost control. Okay, so this is all about the cost management thing, which you already done in the third semester. But here we are going to link up with the project specifically to the data collection specifically to the project, cost accounting for the project, and cost control for the project as well. Cost accounting and cost control serve as a mechanism for identifying and maintaining कंट्रोल ओवर प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, सो व्हाट आई हैव टू डू हियर इज के हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल आर बेसिकली द शील्ड्स। ठीक है, कि जिसको हमारे जो है वो कॉस्ट को कंट्रोल करेंगी और वो ओवर बजट नहीं होने देंगी। अब बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने जो बजट प्रपोज करना है वो इस तरह से होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट में बजट प्रपोज कर देते हैं तो यहाँ पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी है दैट इज ±50% फॉर एग्जांपल। ठीक है, और हमने यहाँ पे इनको कह दिया है कि जी हमारा यहाँ पे कितने पैसे लग रहे हैं, $100 million। ठीक है, अब ±50 का क्या मतलब है कि ये $100 भी लग सकते हैं, दैट वुड बी द $50 million भी लग सकते हैं, एंड द वर्स्ट केस इज $150 million भी लग सकते हैं। दैट प्लस माइनस मीन्स दिस थिंग, इट मीन्स कि जब आपने प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन प्रपोज कर रही है यू हैव टू गिव इट अ टाइम। जैसे जैसे आपका टाइम हो जाएगा या आपके पास जो डाटा कलेक्शन, दैट इज़ द वन थिंग, द डाटा कलेक्शन, जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी यू आर बिट श्योर अबाउट इट कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगती है। सो जैसे आप देख रहे हैं इट्स अ फनल थिंग, सो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुलनेस एज वेल एज फॉर द फेलियर ना यहाँ पे आपके पास ज़्यादा है। बट जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी और आप कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल करते जाएंगे, है इज द पॉइंट जहाँ पे आपकी को ±0.5 एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, अब 0.5 का क्या मतलब है कि इट कैन बी $105 million एंड इट कैन बी $95 million। सो the difference is not that much। ठीक है, सो बट here we have
150 एंड 50। अब नेगेटिव केस में नॉर्मली यही होता है कि वो कहेंगे अच्छा यार इससे तो हमारे पास ये एनालाइज हुआ है कि वी कैन पुट दैट मनी इन द पॉकेट ना. But overall, what I am doing here is I'm a project based company and I have to grab the project from the market. बट अगर मैंने एक हंड्रेड मिलियन डॉलर की चीज़ 50 में बनाई है तो वट इज गोइंग टू बी अफेक्ट हेयर इज माई गुड विल. नेक्स्ट टाइम नो बडी इज गोइंग टू गिव मी द प्रोजेक्ट क्योंकि दैट वुड बी एक्सपेंसिव फॉर देम. ठीक है, तो मेरा पर्पस क्या है, आई हैव टू गो फॉर द सर्वाइवल थिंग. And for the survival thing, what I have to do is I have to make the cost estimation as much correct as I can. ठीक है, so cost estimation is a reasonable, that is the one thing, is a reasonable budget. So in the start what I told you about कि हम जो cost estimate करते हैं that is maximum and the probability existing here can be plus minus 50%. But as far as the data collection and the information about the project nature, our scope, baseline, identify, risk, our human resource plan has been added to it. In that context, what I have to do is कि हमारी probability for the cost estimation जो है वो इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, सो एट दैट पॉइंट हे वी हैव द प्रोबेबिलिटी इज 0.5. इतना गलती के कितने चांसेस हैं, सिर्फ 5% है. ठीक है, सो 5% से आपकी जो प्रोजेक्ट की या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड हेयर. ठीक है, सो यहाँ पे इस वाले टॉपिक में व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट कि कॉस्ट एस्टिमेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो इफ आई एम गोइंग टू समराइज इट अप इन द स्टार्ट, द वी एस्टिमेटेड कॉस्ट लाइक काफ़ी ज़्यादा लगेगा, बट जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी जो मैं इनपुट्स डालती जाऊंगी, सो आई एम बिट श्योर अबाउट इट कि यार यहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेशन है. अब जो एक्चुअल कॉस्ट है दैट इज एग्जिस्टिंग हियर. ठीक है, this is the actual cost of the project and you are estimating जो है वो this is the these are the two things ना, कि ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, that is plus minus 0.5% या plus minus 5, sorry 0.5 नहीं. ठीक है, so this is all about your cost estimation, cost control, and then we have the cost accounting thing. Okay, so now what we have to do here is कि cost management में three things we are going to run is estimation, budgeting, controlling. Why controlling is not why controlling is needed where, because मैंने estimate किया है and I just want कि I stick to it, इतना ज़्यादा मुझे loss face ना करना पड़े. ठीक है, so in that context what we have to do is we complete the project within approved budget. ठीक है, or have accurate time cost estimates and have a realistic budget. ठीक है, the realistic thing you have to add up into the cost estimation. ठीक है, आप $50 million का project जो है वो 100 million में देंगे तो nobody is going to analyze it up कि that's not realistic. But if $50 million project you are saying them like for 55, there may be risk involved in it, there must be external factors involved in it, so it's like it's acceptable now. So common sources of project cost, it's labor, material, subcontracted equipments, facilities, and travel. Labor, as I told you about, it can be it's not like the person who is digging is a laborer, but a manager or IT professionals, it can also be a part of your labor. So definitely आपके पास cost तो exist करती हैं, but nature of job के ऊपर. ठीक है, अब IT professional is taking like per month he's taking $5,000, but for the labor who's digging something, he is going to take about $50. ठीक है, so labor cost तो exist करती है, but within labor cost job description के ऊपर फिर हमारे पास आ जाती है. ठीक है, then we have the material, raw materials हैं, then we have to फिर the equipments and facilities को उसने अलग से categorize कर लिया. ठीक है, and then we have the subcontractors. अच्छा, subcontractors क्या हैं, which partially जो हमारे प्रोडक्ट को कंप्लीट करते हैं. ठीक है, सो हमें लग रहा है कि ये एक्टिविटी जो है वो पैरेलल होके चल सकती हैं, जब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगी नेटवर्क स्केजुलिंग में. ठीक है, कि हमें कुछ लगता है एक्टिविटीज़ जो पैरेलल चल सकती हैं.
पैरेलल चल सकती हैं, तो फिर हम कुछ एक्टिविटीज़ जो हमारे पर्सनल नहीं परफॉर्म करते हम उनको थर्ड कंपनी को दे देते हैं, ठीक है, या इंटरमीडियरीज को दे देते हैं, दे कंप्लीट दैट एक्टिविटी एंड वी जस्ट इनपुट इनटू आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ये ट्रैवल। ट्रैवल मींस ट्रैवलिंग कॉस्ट आ गई, आपके पास इक्विपमेंट्स की ट्रैवलिंग आ गई, या आपके लेबर को ट्रैवल करना है, या आपके पर्सनल्स को ट्रैवल करना है, सो दीज थिंग्स वुड बी इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। सो दिस इज द कॉमन सोर्सेज ऑफ योर प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है। ओके, सो अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन। आफ्टर द कॉस्ट एस्टिमेशन हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा कॉस्ट सॉरी बजटिंग। वी इन दोनों चीज़ों को हमने किस तरह से लेके चलना है, इसको कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल की फॉर्म में। एंड देन वी डिस्कस अबाउट द इनपुट्स फॉर द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड देन द आउटपुट। और उसके बाद हमने डिस्कस किए कॉमन सोर्सेज ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। Direct versus indirect, you already know about this thing. Direct cost is like labor cost, equipments or everything जो हमने previously discuss की. Indirect cost which is not been mentioned anywhere, but हमें उसको incur करना पड़ता है just because supporting activity के लिए, जैसे इज लाइक हमने एक मार्केटिंग के लिए, प्रोजेक्ट की मार्केटिंग के लिए हमने एक पर्सनल को हायर किया है, ऑल्दो ही इज नथिंग, मतलब प्रोजेक्ट की वर्किंग में वो पार्ट नहीं था, बट मार्केटिंग में वो रोल प्ले करेगा, सो दैट वुड बी लाइक इनडायरेक्ट सॉर्ट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड है। मेरे ख्याल से कॉस्ट एस्टिमेशन के बाद इसमें हम डिस्कस भी करेंगे कि हम कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस वुड बी द डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, विच यू कैन सी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की जो जो एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं, दीज आर बीइंग लिंक अप विद द डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास क्या आ गई हैं, जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है, दैट इज़ रिकरिंग वर्सेस नॉन रिकरिंग कॉस्ट। सो आई हैव टू स्टार्ट विद द नॉन रिकरिंग कॉस्ट। अच्छा, ये मैं आपको बता रही थी कि डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट को ना इसने सॉल्व आउट किया हुआ है, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी कि बोर्ड वाइट यूज़ करूँ और फिर आपको ये चीज़ मैथमेटिकल पोर्शन करवा दूँ, अदरवाइज़ मैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को लेके चल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको लिंक अप कर लूँगी। एज आई टोल्ड यू अबाउट द नॉन रिकरिंग कॉस्ट, ठीक है। नॉन रिकरिंग कॉस्ट जो है वो आपके पास क्या है, ऐसी कॉस्ट जो आपकी शुरू में इनकर हो रही है, ठीक है। जैसे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, जैसे कि प्लेसमेंट सर्विसेज हैं, हायरिंग है, इसके अलावा हमारे पास मार्केटिंग एनालिसिस है, इसके बाद सिचुएशन एनालिसिस है, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट में होंगी, ठीक है। और रिकरिंग क्या है, रिकरिंग एक्टिविटीज़ क्या है जो कि ओवरऑल प्रोजेक्ट साइकिल में यूज़ होंगी, ठीक है। सो है यू कैन सी दिस थिंग कि डायरेक्ट जो एक्चुअल हो रही हैं, जो नज़र आ रही हैं, और इनडायरेक्ट उन्हीं डायरेक्ट को सपोर्ट करने के लिए। और रिकरिंग क्या है, होल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में जो आपको एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं, उसको उसको हम क्या कहेंगे, रिकरिंग कॉस्ट। और उस नॉन रिकरिंग क्या है, देखो इसी को सपोर्ट करने के लिए हमने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया, हमने सिचुएशन एनालिसिस किया, हमने मार्केट एनालिसिस किया। अब नॉन रिकरिंग हमने इनकर कर लिया है, अब क्या है, रिकरिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो इट मीन्स दिस नॉन रिकरिंग इज बेसिकली सपोर्टिंग दोज रिकरिंग। सो आई कांट से अबाउट इट कि दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट, ठीक है। दीज आर द टाइप ऑफ कॉस्ट विच हैज़ टू बी इनकर्ड एंड यू हैव टू, मतलब कि आपने इनको इम्पोर्टेंस देनी है, इनको एनालाइज करना है कि यार इस तरह की कॉस्ट एग्जिस्ट करेंगी, सो आई हैव टू एस्टिमेट द कॉस्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट। यू आल्सो नो अबाउट इट। फिक्स वन टाइम एक दफ़ा कॉस्ट लगती है, और वेरिएबल जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम लगती रहती है। फिक्स्ड इज इक्विपमेंट, वेरिएबल इज लाइक बिलिंग, ट्रैवलिंग, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन वी हैव इज द नॉर्मल वर्सेस एक्सपेडिट। नॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट जो कि आपकी इनकर होनी है रूटीन प्रोसेसेस में, ठीक है। और एक्सपेडिट क्या है,
एक्सपेक्टेड क्या है कि जब आपका प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल याद है जिसमें हमने कहा था इंट्रोडक्शन, मेच्योरिटी, ग्रोथ एंड डिक्लाइन और कंप्लीशन फेज, ठीक है। सो डिक्लाइन को हम, सॉरी वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, इसमें डिक्लाइन ही होता है, इसमें कंप्लीशन होता है, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या है कि जब आपको लग रहा है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो रहा और आपको वर्क को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आपके एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा आवर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और नॉर्मली अगर एक लेबर 8 आवर्स लगा रही है, तो अगर प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो रहा, तो लेबर को 10 आवर्स लगाने पड़ेंगे। सो फॉर दैट 2 आवर्स आई हैव टू पे देम। दैट इज़ बेसिकली द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, जो कि हम इनको क्या कहते हैं, क्रैशिंग कॉस्ट, क्रैशिंग एक्टिविटीज़, कि आई वांट टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट इन दैट प्रेस्क्राइब टाइम विच आई एम नॉट गोइंग टू अचीव। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मुझे काम को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। अगर 3 इक्विपमेंट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, सो आई कैन आस्क फॉर फोर्थ इक्विपमेंट एट दैट पॉइंट, एंड देन जो है वो हम उसको अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। अब द पॉइंट है, वी कैन सी है कि नॉर्मल वर्सेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट। अब एक्सपेक्टेड कॉस्ट को आई कैन ऑल्सो लिंक अप टू द रिस्क थिंग, ठीक है, कि अनसर्टेनिटी आ सकती है, इश्यूज आ सकते हैं। सो व्हाट यू कैन सी हियर इज द टाइप ऑफ कॉस्ट आर इंटरलिंक विद ईच अदर, ठीक है। बट मेरा काम क्या है कि मैं जो भी डॉलर एक्टिविटी के अगेंस्ट दे रहा हूँ, मुझे बताना है कि वाई आई एम पुटिंग दैट डॉलर फॉर दैट स्पेसिफिक एक्टिविटी। And what said here is it's a crashing activity which I have this idea is going to be performed at some point of time. So I have to support my project in that case na. So अगर $120 million का project है, so I can say about 2 millions I am proposing for the expedite cost, ठीक है। और तो नॉर्मल के लिए तो मतलब इट्स अ रूटीन वर्क और दिस एंड दैट, दिस इज द लेबर कॉस्ट एंड दिस इज द एक्सपेंडिचर्स वी आर गोइंग टू फेस इन द दिस कैटेगरी, ठीक है। सो दिस इज जस्ट डायरेक्ट लेबर, बिल्डिंग लीज, एक्सपेडाइट मटेरियल, दिस इंफॉर्मेशन दी है कि ये नॉर्मल है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। यू कैन सी दैट थिंग आप, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसमें मैंने इनपुट्स तो डिस्कस कर ली हैं। अब हमने जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी है इज अबाउट द टूल्स एंड द टेक्निक्स विच आर बीन लिंक अप टू हिट, ठीक है। वो मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करती हूँ, ठीक है गाइज। थैंक यू।